Good afternoon, class 6. So, as you have seen the two videos of the chapter Key Elements for Democratic Government, and we have covered the entire chapter in my previous two videos. Those who haven't gone through the videos, please go through. And if you have any doubt, please comment me. I will be solving your doubts. Now, after watching the two videos, you have to solve the NCERT question answers plus the extra question answers that I will be showing you in this video. Now, let's start for the first NCERT question answers. Right, the first one is just a second. The first one question is, what are the various ways in which people participate in the process of government? Right, so the first question says, what are the different ways in which the people participate in the process of government? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन वी पार्टिसिपेट, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग गवर्नमेंट की वर्किंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो राइट, थ्री डिफरेंट वेजेस आर. नंबर वन इज by voting in the election, as I told you in the my video also, that when we give votes, right, तो हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और हम लोग गवर्नमेंट को मतलब प्रेशराइज भी करते हैं, आपको काम हमारे लिए ही करना है, अगर हमारे लिए काम नहीं करोगे, हमारे बेटरमेंट के लिए काम नहीं करोगे तो आपको हम नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे. राइट, सो बाय वोटिंग इन द इलेक्शन ऑल्सो यू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. Second is by taking out rallies and protest if they're unhappy. We have discussed this also. Third one is by participating in discussion on television and other modes of public platforms. हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, आपने देखा होगा आजकल डिबेट्स वगैरह बहुत चलती हैं, डिस्कशंस चलते हैं, उनकी किसी भी जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर. राइट, सो दीज आर द थ्री वेज दैट यू हैव टू स्टडी that how the people can participate in the process of government: by voting in the election, by taking out rallies and protests if they are unhappy, by participating in discussion on television and the other modes of public platform. Correct. Next one. Now next question is, why do you think we need the government to find solution to many disputes or conflict? So आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था छोटा सा अपने घर के लेवल पे, that if we sibling fight with each other, then who are the one to solve a conflict? Our parents, है ना. अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग लड़ते ही रहेंगे, सॉल्व आउट कौन करेगा? Similarly in the national level, the conflicts between different states, different regions, different religions are being solved by the government. ठीक है. So why do we need government to resolve disputes of conflicts between people? Because in its absence these disputes may result violence and death. क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो इनके absence में ये death, violence या death में भी वो कर सकते हैं. People will use their own means to resolve the disputes. They will think that they have the right to use force and prevent others from protesting. There will be no law and order. तो क्या होगा, जो लोग हैं वहाँ के वो अपने अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, कोई वायलेंस पे आ जाएगा, कोई कुछ और करेगा. राइट, तो इससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी में पीस नहीं होगा और कोई लॉ और ऑर्डर नहीं होगा, तो कंट्री को स्मूथ रनिंग नहीं हो पाएगी, कंट्री की स्मूथ रनिंग नहीं हो पाएगी. सो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए वी नीड गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर by forcing people to maintain the law and order actually. Right, so these were the one thing, and they will think that they have the right to force and prevent others from protesting if there will be no law and order. ठीक है, this was the second question. Third question is, what action does the government take to ensure that all the people are treated equally? कौन कौन से एक्शन गवर्नमेंट लेता है? तो देखो पहला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड इन द गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. रिजर्वेशन क्या है कि कुछ सीट ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व कर दी जिनको पूरा मतलब राइट नहीं मिलता आगे पढ़ने के लिए. दिस इज़ डन टू अपलिफ्टमेंट देयर स्टेटस, उनके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए इट इज़ डन. ठीक है, सो दिस वॉज योर NCERT एक्स्ट्रा. ओनली 3 NCERT क्वेश्चंस यू हैव टू डू. पीपल आर गिवन दिस वन, इक्वालिटी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए क्यों गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होता है, एंड हाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द process of government. ठीक है, and write this in your rough notebook, or do one thing, learn and write. ठीक है, learn and write these answers in your rough notebook. Clear? And once you get your notebook back, then you can write in the fair notebook as well. Till then you can write in rough notebook and learn and write. Now next, coming to the extra question answers. Coming to extra question answers now. Now what is the first extra question? This we have discussed in detail also, if you remember.
वी हैव डिस्कस दैट अपेराथाइट की टर्म हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग पीपल्स को अलग अलग रेसेस में डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, राइट. सो what do you first question is what do you mean by apartheid and what are its laws? Apartheid was a political system that existed in South Africa where people were separated on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. According to the laws, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other एंड टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़. तो अपार्थाइड क्या था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया गया था. और उस लॉ में क्या था कि ये जो वाइट पीपल है वो ब्लैक के साथ मिलेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे, पास में नहीं रह सकते, उनकी कोई कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं है. इसको हमने डिटेल में स्टडी भी किया था इन द वीडियो, है ना. जिसको ये याद ना हो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन. What are the various races live in South Africa? साउथ अफ्रीका में कौन कौन से रेसेस थे? वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. इसलिए पता है वहाँ की कंट्री को बोलते थे रेनबो कंट्री. ठीक है, ये आपसे मैं डिस्कस करना भूल गई थी वीडियोस में. उसको हम लोग इसलिए क्या बुलाते थे? उसको हम लोग बोलते थे रेनबो कंट्री. ठीक है, बिकॉज इतने सारे पीपल्स वहाँ रहते थे तो उसको पूरे को रेनबो कंट्री बोला जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पार्टी ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ फाइट करनी शुरू करी थी? द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. दिस वाज द पार्टी हु फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, एक ब्लैक टाउनशिप आपकी बुक में गिवन है जहाँ की केस स्टडी थी. सो नेम वन ब्लैक टाउनशिप वो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप. इट्स गिवन इन योर NCERT बुक ओनली. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस? अभी हमने पढ़ा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. अभी हमने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा भी था रिवर कावेरी का, जो कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में आती है, राइट. सो कौन मेंटेन करता है उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को, कौन रिजॉल्व करता है? सॉरी, दैट इज द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस व्हेन देयर चांस ऑफ वायलेंस? तो अगर कभी भी कोई वायलेंस का चांस हो तो पुलिस का रोल क्या होता है उसमें? इंश्योर करना कि वायलेंस टेक प्लेस करे ही ना. ठीक है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस टू इंश्योर? व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ वायलेंस? द रोल ऑफ द पुलिस इज टू try their best to ensure that violence does not take place. मतलब जहाँ पर वो है वहाँ पे violence बिल्कुल भी take place ना करे और बहुत आसानी से वो सब काम हो जाए. चाहे वो प्रोसेशन है, वो रिलीजन है, वो कुछ भी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है. मतलब पुलिस पूरा ट्राई करती है कि violence किसी की तरह से ना हो and everything runs very smoothly. ठीक है. नेक्स्ट इज how did Dr. B.R. Ambedkar and many others like him, like B.R. Ambedkar only, view equality and justice? तो क्या कैसे देखा उन लोगों ने इक्वालिटी एंड जस्टिस को? उन्होंने जो डॉक्टर अम्बेडकर थे और जो उनकी तरह बाकी और लीडर्स थे उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया था कि जो प्रैक्टिसेस है अनटचेबिलिटी, हम पहले बोलते छुआछूत वाली कि उसको नहीं छूना, वो तो लो कास्ट के हैं, अनटचेबिलिटी, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस को बैन कर देना चाहिए. और हर पीपल का राइट है कि वो इक्वल हो, वो इक्वली ट्रीट किया जाए बिफोर लॉ, और मतलब कोई भी इनइक्वालिटी ना हो. ऑल पीपल आर इक्वल. जब लॉज हैं तो हर किसी के लिए सारे लॉज इक्वल भी होने चाहिए. दिस वाज गिवन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दैट ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो वन इज अप द लॉ. एक्चुअली हम लोग बोलते हैं जो लॉज बनते हैं वो हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है या वो आम इंसान है. सो पहले ये नहीं था, पहले अनटचेबिलिटी, पहले अलग अलग कास्ट के लोग चलते थे. इवन इन लोगों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते थे. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनके लिए मूवमेंट स्टार्ट किया था कि जो अनटचेबिलिटी है उसको बैन करो और हर पीपल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है. दिस वाज अ सिस्टम एक्चुअली a view of Dr. Ambedkar and many people like him. नेक्स्ट वन इज हाउ डू सोसाइटी व्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स? ये हमने अपनी उसमें भी डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था. जो हमारी सोसाइटी है वो हमेशा वैल्यू करती है बॉयज़ को गर्ल्स के ऊपर, राइट. दे गिव द मोर प्रेफरेंस टू बॉय देन अ गर्ल. हम लोग तो डिस्कस भी कर चुके हैं, हमने एग्जांपल्स भी देखे थे कि एजुकेशन भी ज़्यादा प्रेफरेंस बॉयज़ को दीजिए. ऑल्दो आजकल इतना नहीं है. ठीक है, हम लोग ये बोलते आ रहे हैं अब तो इक्वालिटी है, बट रिसेंटली जो इंसिडेंट डाक पत्थर में हुआ था वो बहुत शॉकिंग था, राइट. सो स्टिल वेरी चेंजेस वी कैन फाइंड अ बिग चेंज फ्रॉम द प्रीवियस
और अभी बिफोर आफ्टर हम लोग कर सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा ये डिफरेंसेस थे जो आजकल नहीं है, बट स्टिल there are few incidents which we can relate that हाँ still people are preferring boys over the girls. नेक्स्ट वन इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो उसको हम लोग पॉइंट्स में कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम फर्स्ट पॉइंट कर देते हैं. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who led struggle against apartheid. I have told you प्रीवियसली ऑल्सो, जब नेल्सन मंडेला ने फाइट शुरू किया था तो कौन सी पार्टी ने फाइट किया था अपार्थाइड के खिलाफ? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, और उनके लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला, जिन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम. सो यहाँ से यहाँ तक आपका सेकेंड पॉइंट हो सकता है. ठीक है, और फाइनली उनको सक्सेस मिली थी 1994 में, जब साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, जिसमें सारे जो पीपल थे वो सब इक्वल थे, चाहे थे किसी भी रेसेस के हों. तो आप कैसे लिख सकते हो? वेट, आई विल टेल यू. First point you can write from here to here, second you can write from here to here, and then third, finally they succeeded in 1994, and where South Africa became the democratic country in which all the people of all the races, चाहे वो black है, वो white है, वो कैसे भी हैं, वो considered equal. ठीक है. Now next one is the last question I suppose. हाउ डज़ द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट लिमिटेड? हम बोलते हैं कि सारी पावर जो है अभी गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है. स्टिल हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है, और वो इस गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिट करती है. कैसे लिमिट करती है? ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स. जितनी भी गवर्नमेंट है उसको फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट किया गया है. दैट इज़ फॉर 5 ईयर इन इंडिया. मतलब हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होगी, तो कोई भी गवर्नमेंट अनड्यू एडवांटेज नहीं उठा सकती है अपनी पावर की. Once elected can stay in power only for that period. That period means 5 years के लिए पावर में है. अगर अच्छा काम करेगी तो दोबारा चांस मिलेगा, अच्छा काम नहीं करेगी तो ये चीज़ हाथ से उनके खींच ली जाती है. ठीक है. Okay, one more was there. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. As I told you, वो re-elected कब होंगे? जब वो अच्छा काम करेंगे. अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, so they have to leave their position also. ठीक है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्स, व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड? एज आई टोल्ड यू दैट हमारी जो इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट रीजन, रिलीजन्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब अलग अलग टाइप के हैं, और जहाँ पे इतनी वास्ट कंट्री में अलग अलग डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ईजी सी चीज़ है, आराम से, मतलब कुछ भी हो सकता है. So conflict occurs when people of different cultures, religion, regions and economic background do not get along with each other, or when some among them feel that they are being discriminated. हम डिस्कस कर चुके हैं, जब आपस में बात नहीं हो पाती है, या किसी को लगता है कि नहीं जो ये लॉ है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, या ये हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, या उन्हें कभी भी अपने में इनसिक्योरिटी फील होती है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. ठीक है. और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे पीपल कभी कभार वायलेंट मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए. तो इसीलिए बोलते हैं अगर पुलिस वहाँ पे हो या गवर्नमेंट के लॉज हो तो ये चीज़ हटाई दी जा सकती है. एंड दिस लेड टू फियर एंड टेंशन अमंग द पीपल लिविंग इन एन एरिया. और यही क्या करती है, सारी जो टेंशनों को बढ़ा देती है उस एरिया में रहते हुए लोगों के लिए भी. ठीक है. तो दिस वॉज द वन थिंग, दिस लेड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया. So if you have any problem after this, you can just drop a message. ठीक है. I will be giving you a reply. So these are the few questions. What do you mean by apartheid and what are its laws? Different races in South Africa. Party that fought against system of apartheid. One black township. Responsible for conflicting the conflicts. Role of police if there is a chance of violence. And Dr. Ambedkar views regarding equality and justice, society views over boys and girls, short note on African National Congress, powers of government get limited, and conflicts, what happened afterwards. So kindly complete this work in your rough notebook and kindly learn and write, so it will be better for you all. ठीक है. And after this we will be starting with the third chapter of history in the earlier cities. Clear? Take care, be safe, keep studying. Bye.